मेरे को एक रैंट करना है, दैट वुड नॉट बी प्रोडक्टिव, बट आई जस्ट वांट टू से इट बिकॉज मेरे अंदर वो चीज़ है। हमारे यहाँ पे एक स्कीम है फॉर गर्ल्स, ठीक है, बिटवीन 19 to 23 एज। मुझे इतना एज का आइडिया नहीं है, बट है एक स्कीम है जिसमें जो बच्चे हैं गर्ल होनी चाहिए, गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए बेसिकली, एंड उसके परसेंटेज 10th and 12th में पासिंग 65 से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। एंड आई फिट इन द क्राइटेरिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उस क्राइटेरिया में आती हूँ, क्योंकि इससे पहले तो कोई स्कीम एज इन निकली नहीं है फॉर गर्ल्स। सो एंड मेरे पास साइकिल भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे काफ़ी टाइम से एक साइकिल चाहिए थी बिकॉज ऑफ द कार्डियो, एंड मैं ओबीस हूँ, तो साइकिल वुड डेफिनेटली हेल्प, यू नो। तो मुझे एक साइकिल चाहिए थी एंड आई रियली विश फॉर द सेम, टच वुड, एंड आई फिल इन द क्राइटेरिया, टच वुड, एंड so that's the bit. Now what happened is, मैं जैसे बाहर गई, ठीक है, I took a medicine and I was feeling like vomiting, like I was not feeling like that, but मेरा हाथ चिपचिप हो गए थे मेडिसिन से, तो I just went to wash my hands. What I heard was, मेरे कमरे में पंखा चल रहा है, ठीक है, तो मेरे को बाहर से आवाज़ नहीं आ रही। इससे पहले बैठी हुई थी, he was constantly shouting, I don't know on what damn reason, but I'm trying to intervene because every damn time in the history I had tried intervening, every time it had got backlash on me as if I am the one who's the problem and who creates ruckus. And so I've just decided to not intervene into anyone's matter, anyone's business. If they're born, they will deal with it anyhow. जैसे कि वो कौन सा मेरे कहने से डिसरिस्पेक्ट कम करेगा, और क्या ही वो डिसरिस्पेक्ट लेना कम करेंगी, ठीक है। Wherein my tonality of speaking, of talking is very different, as my parents say my tonality is what they hate, they don't like when I speak. And so yeah, I have just stopped responding to whatever people wanna think of me. I've just stopped responding basically, because for a very long period of time I thought these 3 people are mine, but then eventually I got to know that 2 people are mine. Then now I just feel like 2 people are relatively mine, मतलब relatively more mine with respect to the others people of this environment. Disregarding all of it, I'm very grateful for everything, but the point here I want to mention is, मैं गई थी and I heard him saying कि गवर्नमेंट बहुत पार्शल है, really गवर्नमेंट पार्शल है, हॉलो वाले बच्चों को कॉल करो, गवर्नमेंट पार्शल है, आर्मी में आप बॉयज़ की सीट्स देख लो, अरे वो सब छोड़ो, ये सब तो वो हो गया अकेडमिक स्टेटस, ठीक है, आप इसमें जाके सीट्स देख लेना रेशियो कि लड़कों की सीट्स मिल जाती है, डिफेंस में सैलरी जिसमें हाई रहती है, एंड ऑफ कोर्स पैशन भी उसमें हाई रहता है, एजुकेशन भी उसमें हाई रहती है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स बॉयज़ ज़्यादा होते हैं. Do you know the psychology behind it? The psychology behind it is, boys need to prove less of their worth. When girls have to enter that field, they need to really prove themselves to get certain amount of seat, that will really prove themselves. And that's not the case in boys. They are already, considered to be having such strength, physically, but that's actually not true. No book defines कि तुम्हें लड़कों को ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कोई बुक में नहीं लिखा है. सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें जो धीरे धीरे करके इम्बिट करी गई हैं, और मजाल है ये लोग भूल जाए, मजाल है, क्योंकि अगर ये लोग भूलने के राज़ी हो जाएंगे तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये कम हो जाएगा, ये लोग नहीं समझेंगे. Whereas मैं ये पॉइंट बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव बीन गिवन with respect to my gender and the educational criteria that I fit in, and I really want a cycle because I don't have one. Whereas in his case, he has a cycle, he has a great cycle जिसमें gears है, 21 gears है, 7-3 का gear है, ठीक है. So he has a very good cycle and he got it in class 6th, as long as I remember. So I didn't had cycle for a very long period of time and I really wanted it. Somehow this has been given and I'm very grateful and I really touchful and no one others at all. But yeah, I really want it. But the people like them जो सोचते हैं कि government gender biased है, it's not like that. You already have a cycle, and maybe most of the boys do have the traveling thing, and if they don't have, they have greater environmental things. They don't need to prove themselves to get that thing. They don't need to get
that thing by proving themselves. They are already took as तुम्हारे पास तो ये होगा ही, तुम्हारे पास तो ये होगा ही, तो तुम्हारे जेंडर को अलग सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं. तुम पे ऑलरेडी एक साइकिल है, तुम दूसरी साइकिल लेके करोगे क्या? क्या करोगे? मैंने तो श्रेया के पास कोई साइकिल नहीं देखी है. मैंने तो यहाँ पे बहुत कम ही बच्चियाँ हैं जिन पे साइकिल है, और मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई एज ये वाली एज क्राइटेरिया को फिट इन करती भी होंगी, तो इट्स गुड फॉर देम. मुझे बस ये बोलना था कि जो लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जेंडर बाइज्ड है, इट इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई एम हियरिंग जो जिसमें मैं फिट इन कर सकती हूँ. इससे पहले भी 2000 की स्कीम पता नहीं क्या क्या, लेकिन कोई वर्क नहीं करती है. अब जब कोई चीज़ आई है और मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो दोनों मीट कर रही हैं, तो तुम लोगों को नज़र क्यों लगानी है फालतू में? तुम पे है साइकिल भाई, संतुष्ट रहो. लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को बहुत बड़ी चुल रहती है कि किसी दूसरे को ये कैसा मिल सकता है. इन लोगों को डिफरेंस क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इन लोगों को उस डिफरेंस से फ़ायदा रहता है हमेशा. और ये लोग चाहते हैं कि ये डिफरेंस ना कम ना हो, ताकि ये लोग चाहते हैं डिफरेंस कम ना हो ताकि इनकी सुपीरियॉरिटी जो है वो कम ना हो जाए. यू नो व्हाट, एट वन टाइम आई यूज्ड टू फील मेरा भाई ऐसा नहीं निकलेगा जैसे ये सब फुद्दू लोग निकलते हैं ना. बट लेटर डिड आई रियलाइज दैट माई होल लाइफ आई वॉज इन सच एन डिल्यूजन कि माई फैमिली members are extremely liberal, they are not conservative. With passing on of time, I have realized they're not extremely conservative, but yes, they have a balance of both. But with convenience, with the surroundings, with the environment, they pass comments like माहौल के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, माहौल के हिसाब से निकलना चाहिए. really? माहौल वो इंसान जो आपको गाँव में मिल रहा है वो यहाँ पे भी मिल सकता है. क्या मतलब है भाई? सोच तो वैसी सोच यहाँ वाले इंसान की भी किसी की हो सकती है. तो क्या अब हम अपना काम करना छोड़ दें? क्या करें? मेरे को तो भाई सही में लगता है कि लाइक अ हेल ऑफ टाइम्स आई जस्ट फील कि मेरा जेंडर मुझे बदलवाना है एट एनी कॉस्ट. बट देन आई फील लाइक व्हाई एम आई लेटिंग देम अफेक्ट मी, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ पीपल शुड वर्क. यू नो, ये तो अभी मेरी बहुत ही इनिशियल स्टेज है जहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें हिट करी हैं, और बहुत बार मेरे को इतना खिलसा देती ना ये चीज़ें, मैं बैठ नहीं पाती अपनी जगह पे. मेरे को मन करता है कि मैं गुस्सा निकाल देता, और मैं निकाल भी देती एक हफ्ता से. ये आंटी ने खैर क्या ही बोल सकते हैं. But whatsoever it is, I'll just say and end this by saying government is not at all partial. Government always seeks for their own benefits, and इसमें भी उनका कोई benefit ही है for sure. Basically, if the benefit can be anything, तुम जो एज कैटर करना चाह रहे हो उसमें वोटिंग बैंक में हो सकता है वुमेंस का ज़्यादा हाथ हो सकता है वुमेंस की ज़्यादा नीड हो उस चीज़ की. तुमको वो चीज़ें देखनी ही नहीं है, तुमको सिर्फ उतना ही देखना है जितना तुम्हें देखना है. जस्ट टू पास अ स्टेटमेंट लाइक गवर्नमेंट पार्शियल है, you are in such a delusion, you are such in a damn illusion कि मैं तुमको कुछ भी समझा लूँ तुमको नहीं समझ में आएगा. भाई मैंने जितनी बार मैंने ट्राई किया ना सामने वाले को जेंडर के ऊपर समझाने का, या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर समझाने का, या LGBTQ के ऊपर समझाने का, किसी भी टॉपिक पे जनरली, तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि जिसको समझाओ ना एक बार ये श्योर कर लो, मतलब आपको इनिशियल टॉक से पता चल जाएगा कि उसका इंटेंट क्या है. अगर उसका इंटेंट है कि वो तुम्हारी बात सुन रहा है ताकि वो अपना तुम्हारी बात काट करके अपनी बात रख सके, तो वहाँ से कट लो. तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है, तुम्हारा ब्रेन ड्रेन होने वाला है, और तुम्हारा बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन, और तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे एट द एंड. सो बेटर यू लीव फ्रॉम देयर एंड देन जस्ट रैंट आउट टू योरसेल्फ एंड बी क्लियर इन योरसेल्फ. दैट्स इट. तुमको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है भाई? दूसरे का भी देखो, कर्म सबके लिखे होते हैं. तुम पे जब तक ना आए वो चीज़, ठीक है, तब तक तुम अपना मुंह बंद नहीं रखने को बोल रही हूँ. मैं बोल रही हूँ अपने अंदर क्लैरिटी रखो और पीस को चुनो मीनवाइल, ठीक है. और जिस दिन तुमको लगे पारा चढ़ चुका है,
पारा चढ़ चुका है, एज इन तुम पे बात आ रही हो। दिस इज़ नॉट अ गुड एडवाइस आफ्टर ऑल। लाइक बेसिकली अभी देखो NTA का ये सीन जो हुआ, ठीक है, अभी हमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारे बैच में हो रहा है, इसलिए 24 में भी तो ये चीज़ हुई थी, एंड इनफैक्ट 2015 में भी हुई थी। तो हमको तब इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि तब हम उस बैच में नहीं थे। अभी हमको इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही क्योंकि हम इस बैच में, तो थिंग इज़ लाइक दैट ओनली। जब तक तुम पे बात नहीं आएगी ना, तब तक तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ से। तो इसलिए मैं ट्राई करती थी हमेशा कि मैं मेरा चीज़ें उन लोग को समझा के चलो, बट विथ द पासिंग ऑन ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड they won't understand, they won't really understand, because it's the convenience they choose always and always and always. आज क्या हुआ, आज एक यहाँ पे एक बच्चा है, इसका रिज़ल्ट आया था, ठीक है। मेरे को एक अंदर से, मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी इंसान कि मैं किसी का रिज़ल्ट पूछूँ या कुछ ऐसा पूछूँ, और मेरे को तो एट दिस पॉइंट आई जस्ट फील क्यों ही पूछना किसी का रिज़ल्ट, जीन लेन तो उसको जैसे जी। क्योंकि भाई मैं ना, मतलब मैं 12th में थी एंड आई वॉज लिटरली, मेरी 11th 12th जो एनवायरनमेंट मैंने और हर चीज़ में ख़राब करी है, उसमें मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे शायद 70 भी ना पहुँच गए, ठीक है, तो भी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसी हो गई थी। मैंने बहुत मतलब जान लगाई थी अपनी, रात रात भर मतलब बहुत जान लगाती थी। मेरा एकदम पैटर्न ऐसा हो गया था, मैं स्ट्रेस आता था मेरे को, मुझे नींद आती थी बहुत भारी, बट मैंने समहाउ मैनेज करके अपने पेपर्स दिए, बोर्ड एग्जाम्स तो देने थे आफ्टर ऑल, तो वो दिए मैंने, एंड आई नो व्हाट आई वेंट थ्रू, बट किसी को नहीं समझ आ सकता है, और मुझे समझाना भी नहीं किसी को। मतलब फैक्ट कि लोग मतलब मेरे मार्क्स को अपने मार्क्स से कंपेयर करके ऐसे मुँह बना लेते हैं। मतलब मेरे आई है 86.4 टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले 85 पॉइंट समथिंग था, अब 86.4 हो चुके हैं, एंड आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि 89 समथिंग होंगे, बट 89 नहीं है, 86.4 है, एंड आई एम जस्ट ओके विद इट। मेरे को 10th में भी ज़्यादा, मेरे को 10th में ज़्यादा मिले थे, तो मैंने कौन सा भांगड़ा पा दिया था भाई, मैंने कौन सा झंडा उखाड़ लिया था, या किसी ने भी जिसके 10th 12th में बहुत अच्छा आते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि उसका आगे जाके सब बढ़िया ही हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, दैट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू प्लेस योर सेल्फ, एंड मैं बहुत, अब मेरा सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ एकदम लो पे जा चुका था। अभी भी अच्छा नहीं है, अभी बहुत कम है, और मेरा टॉकिंग स्टाइल चेंज हो चुका है, मेरी टोनालिटी, मेरा रिएक्शन ऑन एवरीथिंग इज़ प्योर रेज, इट्स जस्ट एंड जस्ट एंगर, मेरा अंदर से किलकिली उठती है, एंड मेरे को बड़ा गुस्सा आता है हर चीज़ पे। तुम छोटी छोटी बात ले लो, बड़ी से बड़ी बात ले लो, मेरा हर चीज़ पे रिएक्शन गुस्सा ही होता है, मेजॉरिटी की, मोस्टली मेजॉरिटी कोई वर्ड नहीं होता, तो दैट्स दैट। बाकी हाँ, तो उसका रिजल्ट है, एंड मुझे नहीं पता था, घर आ गया मैं किचन में, मम्मा ने बोला ये है, अब मुझे नहीं पता उसने अपना नाम सुना कि नहीं सुना। मेरा, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मेरा मुँह ऐसा बना, और मैं अपने रूम टूवर्ड्स जल्दी से आ गई। मेरे को भाई शक्ल तक नहीं देखनी थी किसी की, कि मैं क्यों, मुझे क्यों बता रहे हो किसी का रिज़ल्ट, मुझे क्यों बता रहे हो किसी का रिज़ल्ट। वो रसगुल्ला लाया, मैंने डिसाइड कर लिया था मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगी, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मम्मा निकल गई यहाँ से, तो मैंने देखा डाइनिंग टेबल पे रसगुल्ला रखा था, मैंने हाफ़ का हाफ़ खाया, फिर हाफ़ खाया, फिर बाकी का हाफ़ खा लिया, तो ऑलमोस्ट एक रसगुल्ला खा लिया, एक नमकीन खा ली, सारी डाइट की ऐसी की तैसी हो गई, सारी डाइट की ऐसी की तैसी हो गई। हालांकि मेरे को रिज़ल्ट अभी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं, ना मेरे को पूछना, मेरे को जानना टू वेरी ऑनेस्ट, बट वो चीज़ है ना अंदर से एकदम ऐसे क्यूरियोसिटी से आती है कि कितने रिज़ल्ट बने, कितना रिज़ल्ट आया, वो पता नहीं कैसे ही मेरे अंदर, मतलब जनरली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरे को अपना रिज़ल्ट बताए, या मैं किसी का रिज़ल्ट पाऊँ, एटलीस्ट बोर्ड का तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि भाई बोर्ड का ना मेरे को अंदर से लगता है सब घोटाला चल रहा है, सब घोटाला चल रहा है। 10th में मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट करे थे अपने, ठीक है, 98 99 के आसपास, मेरे 95 आए, अब क्या करूँ, वापस रीचेकिंग कराया तो मार्क्स नहीं बढ़े, क्या ही कर सकते हैं भाई। तो वही है, 12th में मैंने अपने 70 से, मतलब मेरा सेल्फ इस्टीम तो इतना कम था कि मैं 70 भी क्रॉस कर जाऊँ, ये मेरे को लग रहा था, लेकिन मेरे को एक्सपेक्टेशन तो मेरी 90s में थी, बट कौन ही जाने मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं क्यों ही बताऊँ किसी को, क्योंकि सबको तो बाहर से ऐसे ही लगता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया था, और मैंने जो किया था ना, तो भी वेरी ऑनेस्ट मेरे को वो याद भी नहीं है।
मेरे को यही याद है कि मैंने मेहनत कैसे करी थी, मतलब मैंने यूट्यूब से सब किया था, बट वही है, मेहनत करी लेकिन बहुत कम टाइम में करी। वही चीज़ ज़्यादा टाइम में हो जाती तो मेरे अच्छे परसेंटेज बन जाते। तो मेरे को लगता है कि अच्छे परसेंट बन भी जाते तो भी क्या ही था, 12th के परसेंटेज कहीं काम तो आने वाले नहीं है। तुमको अगर तुमको कोई ऐसा कॉलेज, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर किसी का 98, 99 12th में बने और फिर उसको कॉलेज मिल जाए, उससे बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो ऐसे में कोई बोर्ड्स का रिजल्ट ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, बस देने को दे रहे बच्चे, करने को कर रहे हैं पढ़ाई बस। और बाकी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एंड स्पेशली नीट में करा, मैंने सोचा था कि मैंने तो प्लानिंग भी कर ली थी, मतलब प्लानिंग नहीं करी थी, बट हाँ ओवरऑल ऐसा ओवरऑल टाइप ऑफ सोच लिया था कैसे क्या करेंगे। फिर ये बीच में आ गया और होगा सारा जितना आधा के जी मैंने लूज़ किया था, एक दिन में वापस आ गया होगा, एक दिन में। मेरी बॉडी भाई सुनती ही नहीं है मेरी, इतना मतलब पहले मेरा 10th तक ऐसा होता था कि मेरे को स्ट्रेस होता था ना, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। अब एकदम ऑपोजिट हो भाई, मेरे को अगर स्ट्रेस होता है ना, मेरे को और ज़्यादा भूख लगती है, और फिर मैं अपने आप को पूछती हूँ कि साला मेरे को भूख कैसे लग सकती है, इतना सर वो हुआ है, ख़राब पड़ा हुआ है, इतना सिस्टम सारा बिगड़ चुका है, कहीं कुछ नहीं बचा मेरे पास। सिलेबस के नाम पे सिलेबस का एस भी नहीं है मेरे पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भूख लग कैसे सकती, मेरे को नींद लग कैसे सकती, और मेरे को उसी पॉइंट पे इतना पीक स्लीप आएगी, इतना पीक। देखो अभी मैं बात करूँ नींद की, मेरे को नींद चढ़ने लगी, जबकि मैं शाम को ही सो के उठी हूँ, और भी ऐसा वैसा नहीं, 3 घंटे स्ट्रेट सो के उठी हूँ। फिर भी अब तो नाम सॉरी, अब तो चाहे जो हो भाई, मेरे को पढ़ना नहीं, मेरे को पता है मरूंगी तो मैं खाऊंगी, ठीक है, मेरे को पता है। 11th 12th मेरे को पूरा टाइम लगता था कि मैं मर जाऊँगी, 12th के एंड में मर जाऊँगी, कोई मौत नहीं आती, कोई मौत नहीं आती, घर बैठे तो कभी नहीं आता मुझे, एटलीस्ट तो नहीं होगी, मुझे पता है चीज़। बाकी मेरे को पिलसना बहुत वो लगता है, मतलब मेरा खून होता है भाई सही में। मेरे को मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊँ या कुछ ऐसा जवाब दे दूँ, बट भाई ना जवाब दो ही नहीं तो फिर मेरे पेरेंट्स को दिक्कत रहती है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब है, तुम्हारा ये बहुत करना है ना, सब चीज़ ख़राब है बेसिकली। वेट ले लो, शक्ल ले लो, बाल ले लो, मसल ले लो, बोन ले लो, हर चीज़ मेरी ख़राब ही हो रखी है। बस हाँ एक चीज़ अच्छी कि मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ, और बात मैं मतलब मेरे को तो अच्छी लगती है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आई टॉक गुड, एंड आई हैव नॉलेज अबाउट वट एवर आई स्पीक, एंड आई डोंट टॉक बेसलेसली, यू नो, आई टॉक वेरी फैक्चुअली। तो वो चीज़ है, बट नन ऑफ इट इज़ गिविंग मी मनी, यू नो। बाकी मेरा वेट बहुत ज़्यादा है भाई, हद से ज़्यादा मेरा वेट। तुम लोग देखोगे ना तो भाई मेरा वेट बहुत है, मेरा 90 kgs के ऊपर है वेट, एंड आई एम जस्ट 5'2" एंड आई एम 19 ईयर्स ऑफ ओल्ड। मतलब मेरे से दो उन्हें एज के लोग जो पतले पतले होंगे वो मेरे से मोटे लगेंगे, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई, बट मेरे को ना, मैंने कुछ सोच रखा है अपने लिए, उसके लिए मेरे को वेट रिड्यूस करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेट बढ़ा होना इज़ अ साइन ऑफ इनडिसिप्लिन, एंड वो तो भाई मेरे को अपनी जान पे भी खाना पड़ेगा तब भी मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी। एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम आई ईट एनी रसगुल्ला, आई ईट एनी नमकीन, अब से मैं नहीं खाऊंगी भाई। आई प्रॉमिस दिस टू माई सेल्फ, नो मैटर व्हाट हैपन्स। कल तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी भाई। मैंने पहले सोचा था मैं शाम के बाद में खाऊंगी, शाम के बाद मैं नमकीन ठूस लूँ, नमकीन के बाद मैंने रसगुल्ला खा लिया, अब मेरा मन करता है मैं तरबूज वो मेलन भी खा लूँ, ऐसा तो मन है मेरा। खैर मन के बहकावे में नहीं आना है, और मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया, तो मैं इस प्रॉमिस पर अड़ग रहूँगी, नो शुगर एट ऑल। कल तो मैं नहीं खाऊंगी भाई कुछ भी, कल तो भाई मैं कम ही खा रही हूँ। सी दिस इज़ द वाटर आई फिल्ड 2 to 3 days अगो, गर्म पानी भरा था इसमें, एक सिप भी नहीं पिया मैंने इससे। क्या बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ। सिलेबस का एस भी नहीं हुआ है, एंड मैं कल से बॉडी फ्रूट्स के पीछे पड़ी थी, वो तक नहीं हुआ मेरा। ऊपर से सब ने अपनी अपनी असलियत बता दी है मेरे को कि वो मैं बोलने कैसे सकती हूँ, और मैं बोलती तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, मेरे को पड़ता भी नहीं है, पर मेरे को कभी कभी पड़ जाता है, और जब पड़ता है ना मैं किलस जाती हूँ, और जब मैं किलस जाती हूँ मेरे को बड़ी गुस्सा आती है, और फिर वो गुस्सा मेरे को पसंद नहीं आता है,
और फिर साइकिल रिपीट होती रहती है, ये चीज़ें हैं। चलो आज का रैंट इतना ही था। अब बाकी का रैंट देखो, मेरे को ना रैंट ख़त्म होने का ना, तो मेरे को लगता है कितना अनप्रोडक्टिव चीज़ करती है, कितना अनप्रोडक्टिव चीज़ करती है। और मेरे को एक फीलिंग रहती कि कोई और मेरी वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा, बट आज मेरे दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल नहीं थी। आज मैंने सिर्फ अपना जो भी फील करा वो बोल दिया। और हाँ, ये चीज़ है, बाकी अगर कुछ होगा तो कभी और बता दिया जाएगा। बस ये I won't let anyone's thought affect me. I'll just end this up by saying कि जियो और जीने दो, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग बड़ी जल्दी समझता है, मुझे बहुत जल्दी। सही बताऊँ, मेरे को अपने आप में क्रिमिनल जैसा फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया। एवरीबडी सो ईगर। मैं अगर एक शब्द भी बोलूँगी ना, मेरे को तुरंत बोल दीजिएगा तुमसे तो नीट ही निकला, एक बार अटेम्प्ट करा था, वो भी काउंट नहीं होगा, वो भी काउंट नहीं होगा। वाओ, व्हाट अ स्ट्रैटेजी एनडीए। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं किसी को समझाऊँ क्या अपनी बात, फिर मेरे को लगता है क्या ही समझाना, और एक्चुअली क्या ही समझाना भाई। जो समझाओ उसको जो समझे, जिसको नहीं समझना है उसको तो भाई छोड़ ही दो उनके हाल पे। फिर चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं उनको छोड़ दो भाई। मेरा तो मन उठ गया भाई, सबसे मन उठ चुका है मेरा। मेरे को रह के सबकी जो सब बुरे टाइम पे मेरे को बोलते ना, मेरे को रह के वही चीज़ें आती है। फिर चाहे वो इंसान मेरे को कितना भी प्यार करे, लेकिन मेरे को वो जो बुरी बात होती है ना वो ज़रूर याद आती है। और मैं इस हद तक पहुँच जाती हूँ ना उस पॉइंट में, मेरा मुँह एकदम श्रिंक हो जाता है उस टाइम पे कि इस इंसान ने मेरे को उस पॉइंट पे ये चीज़ बोल दी थी। इतना मैं सोचती हूँ, इतना दिमाग मेरा सिलेबस में चल जाए। वैसे बात तो सही है, जब मेरे को ये सब चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रह सकती तो एनसीईआरटी की लाइन्स क्यों नहीं रह सकती यार, क्यों नहीं रह सकती, ऑब्वियसली रह सकती है। बट वही है ना, ये मेरा माइंडसेट ऐसा बना लिया, पता नहीं क्या है भाई, मेरे को सही में समझ नहीं आता। जब मेरा दिमाग एकदम बोली हुई चीज़ों को ऐसे रट सकता है, तो क्यों नहीं रट सकता है ये एनसीईआरटी लाइन्स। हाँ, मेरे को लगता है कि मेरी रीडिंग स्किल्स नहीं मैं उतनी यूज़ कर रही, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे सोचती शांति बनी, अब नहीं, अब मैं अपना रीडिंग करके। चलो भाई, आज का हो गया, अपना पानी भी लेती हूँ, फिर बाय बाय।